Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on Be Strong Physically and Mentally to protect oneself. To learn how to take care of yourself physically and mentally. To learn how to balance and control both your mind and body. By our speaker, Komal Bansal. To create a safe environment and safeguard oneself. To create self-awareness about the surroundings. Our chairman, Shri Subhashji Parmar, has inspired and guided us. To get your teen into sports, provide them with a safe and fun after-school activity, or simply to have them learn proper self-defense skills to build self-esteem and confidence. Let's begin with our today's interesting webinar. A very good morning to everyone. With warm greetings, I, Sonal Khabia, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, feel highly privileged to welcome you all for Vijay Vallabh Sunday Hour. Today, we have very interesting and useful Facebook Live webinar with our eminent and passionate guest, Dr. Komal Bansal, on the topic, Be Strong Physically and Mentally. We at Acharya Shri Vijay Vallabh School, with the inspiration and guidance from our chairman, Sri Subhashji Parmar Sir, and members of the committee, have organized this useful and knowledgeable webinar. Be strong enough to stand alone, smart enough to know when you need help, and brave enough to defend yourself. Self-defense is the method by which one can protect oneself with one's own strength. With the excessive rise in the crime rate, the need of learning how to defend yourself is also growing. To protect oneself from being harmed, injured, or killed is a basic right of every human being. So, everyone, let's be ready and invest your quality time to gain more knowledge about self-defense, its importance, and learn various tricks and techniques which are useful for us and enjoy the safety of joy. Now, I request our respected principal, Mrs. Snehal Kataukar Madam, to brief us about our school. Over to you, ma'am. Thank you, Sonal. Good morning to one and all. Once again, a very warm welcome to all of you. I thank our today's speaker, Dr. Komal Bansal, for accepting our request and ready to enlighten our today's webinar on the topic, Be Strong Physically and Mentally. Self-defense creates self-awareness. It is rightly said, as long as there is life and a society, the need for self-defense will always be present. Self-defense is a lifestyle. Always prepares, always protects. We at Acharya Shri Vijay Vallabh School always train our children for taekwondo, karate, and also conduct workshops like good touch and bad touch, which motivates and develops confidence, develops various skills, maintains physical health, learns street and public awareness, balance, self-discipline, and social skills, which would help them to develop self-defense in them. It also helps them to prepare a strong base to prepare themselves for future. I wholeheartedly thank our chairman, Sir, Sri Subhashji Parmar, for the strong support and the guidance given to us for this webinar. Now let's move further and gain maximum benefit from today's outstanding and interesting webinar on the topic, Be Strong Physically and Mentally. Self-defense creates self-awareness.
Thank you. Over to you, Sonal. Thank you, madam. Now, I would like to introduce to you our today's guest of honor. I'm extremely glad to welcome our guest, Dr. Komal Bansal, for today's session. Ma'am is a director and founder of KBK Raksha Foundation, Women Empowerment NGO. Ma'am is physiotherapist, dietitian, holistic therapist, and weight loss expert. Ma'am is also an entrepreneur and philanthropist. Ma'am is a module designer, writer at Fitness Institute of India. Ma'am is also a great counselor and a self-employed for schools and corporate and conduct various sessions for self-defense for women, soft skill sessions, technical sessions, and also take generation technology classroom trainings. To spread awareness about health, ma'am is running a campaign in association with Numa Fit India. Let's make the corporates fitter. Ma'am, we are indeed very fortunate that you are with us this lovely morning to share your views. Now, I request ma'am to express her valuable views. Over to you, doctor. Thank you. Thanks a lot, Sunil, for a beautiful interview, beautiful introduction of mine. I'm really glad to be here today. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. आज एक बड़ा अच्छा मौका है. आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. And मैं really, from whole of the society, I'm really thankful to your school and the management जिन्होंने इस टॉपिक को उठाया और जिन्होंने इस टॉपिक को पेरेंट्स तक पहुंचाने का प्रयत्न किया. कोशिश कर रहे हो आप लोग. It's a very nice initiative. It's a beautiful initiative. So yes, as you had mentioned correctly, so I'm the founder of an organization under the name of KBK Raksha Foundation, and it had been 5 years. 5 साल हुआ जब से हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया. और ना ही सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे इंडिया में हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस के ऊपर, बच्चों की सेफ्टी कैसे हम लोगों को मैनेज करना चाहिए, कैसे जब बच्चे बाहर हों, क्योंकि हर वक्त एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकता. कोशिश करके भी कहीं ना कहीं वो छोटा सा ये गैप होता है वो आ जाता है. तो उस गैप को हमें कैसे भरना है, इंश्योर करते हुए कि हमारा बच्चा सेफ है, हमारा बच्चा सुरक्षित है, वो चीज के बारे में आज हम बात करेंगे. आई कुड सी सम ब्यूटिफुल पेरेंट्स ओवर हियर. वीना जी को मैं देख पा रही हूँ. एंड आई कैन सी सेवरल पेरेंट्स ओवर हियर. राजश्री जी हैं, सरला जी हैं, रूपाली जी हैं, कुलदीप जी हैं. आई वेलकम एवरीबडी. एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी पेरेंट्स से कि खुल के क्वेश्चंस पूछें. हमारे मन में एज अ पेरेंट, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो खुल के क्वेश्चंस पूछें. टीनेजर स्टूडेंट्स भी होंगे, टीनेजर बच्चे भी होंगे आप लोगों के. आई एम श्योर वो समय या फिर वो जो एज होती है उसको हैंडल करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है. कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे चीजों को हम लोग हैंडल करें. उन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. And I hope the session will be a remarkable one in the history of your organization. Okay, fine, great. So I'll also keep asking some questions from you. मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, किसी भी कोई भी पेरेंट जो है हिचकिचाए ना अपना माइक को ऑन करके और जवाब दे. Like what exactly do you understand by self defense? सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब समझते हैं? बहुत ही कॉमन टर्म हो गया है आजकल का सेल्फ डिफेंस, राइट? कहीं पे भी हम सुनते हैं सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए. क्या समझते हैं आप? लाइक सेल्फ डिफेंस से क्या मतलब हुआ? वीना जी, मैं चाहूंगी, आपको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपने अपने बच्चे को भी बुलाया है साथ में. I'm really happy. I mean, आप इस टॉपिक के बारे में आप बहुत केयरफुल हैं और आप जो है इसको सीरियसली ले रहे हो. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले, सेल्फ डिफेंस से आप क्या एक जनरल समझते हैं?
Good morning, ma'am. Good morning, Veena. I'm today very happy to see you and thank you my Vijay Vallabh School कि हर संडे को इतने अच्छे से वेबिनार बनाते हैं, हर पेरेंट्स को मौका देते हैं कि अपने बारे में बोलिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतना कुछ करते हैं हमारे स्कूल वाले। इसके लिए थैंक यू टू एवरीवन। और सेल्फ डिफेंस ये कि अपने बच्चों को कैसे कामयाब बनाना है, मेरा तो यही मानना है कि अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना, किन बारों किस चीज के बारे में उनको सिखाना है, गर्ल्स को किस क्या क्या चीजें सिखानी चाहिए, बॉयज को क्या क्या चीजें सिखानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है करके, और माइंड में कैसे फ्री रहना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मतलब बिल्कुल ऑन बैंग ऑन, यू हैड मेंशन्ड इट एंड एक्सप्लेन्ड इट बेसिकली। सो सेल्फ डिफेंस से मेरा मतलब ये है कि अगर आप आग से अपने बच्चे को बचाते हो, राइट, आप पानी से अपने बच्चे को बचाना सिखाते हो कि ठीक है तुमको स्विमिंग सीखना चाहिए, आग है तो तुम उससे दूर रहना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी में हैं जैसे कि भाई जिसको कि हम कहते हैं चाइल्ड अब्यूज है या फिर विमेन अब्यूज है या फिर सेक्सुअल अब्यूज है, उन चीजों से अपने बच्चे को कैसे बचा के रखना है, उसको मैं कहूंगी कि हम सेल्फ डिफेंस का जनरलाइज नाम लेते हैं, राइट, उसको हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं कि उन चीजों से कैसे आपको सावधान रहना है, उन चीजों से आपको कैसे डरना नहीं है, बेसिकली उसको मैं कहूंगी कि हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं, राइट। अभी सेल्फ डिफेंस के आई वुड से देयर आर टू वेरी वेरी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज मेंटल सेल्फ डिफेंस एंड फिजिकल सेल्फ डिफेंस, राइट। आज पर्टिकुलरली हम बात करेंगे मेंटल सेल्फ डिफेंस की। इट इज बिकॉज के एक ये जो हमारा एक अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग फिजिकली नहीं मीट कर पा रहे हैं, तो इस ऑनलाइन मीडियम का ये फायदा जरूर हो गया है कि हम मेंटल सेल्फ डिफेंस को बहुत पर्टिकुलरली और बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट कर पा रहे हैं। और जो कि मैं कहूंगी कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं 70% है सेल्फ डिफेंस का। मतलब अगर आपने मेंटल सेल्फ डिफेंस को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है तो आपको शायद फिजिकल सेल्फ डिफेंस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई हैव सीन, मतलब मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है। और ये आपको मैं बताऊं, मैं खुद भी अभी तक ब्लैक बेल्ट नहीं हूं, खुद भी मैंने कोई मिक्स मार्शल आर्ट में मास्टरी नहीं करी है, मैं अभी तक भी खुद वो जो टेक्निक्स होते हैं और वो जो फाइटिंग स्किल्स होते हैं उसमें मैंने अभी तक कोई महारत हासिल नहीं करी है। बट आई वुड से कि हाँ, सेल्फ डिफेंस का अगर आप नाम लें या फिर अगर आप सेल्फ डिफेंस की बात करें तो मैं कम से कम इतना जरूर कहूंगी कि मैं खुद को बचा करके उस सिचुएशन में से बाहर आ जाऊंगी, या मेरा बच्चा अपने आप को सिचुएशन में से बचा करके बाहर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम मेंटल सेल्फ डिफेंस की बात कर ही रहे हैं तो आई सी पेरेंट्स ओवर हियर, मैं जानना चाहूंगी कि आपके बच्चे किस किस एज ग्रुप में हैं? आप सभी के बच्चे किस किस एज ग्रुप में हैं मैम? प्लीज switch on your this thing mics. राजश्री जी, रूपाली जी, किस एज में है आपके बच्चे? My child is 6 years old, ma'am. 6 years old. Okay, okay, okay. So generally, basically सभी 6 साल के बच्चे हैं, right? हाँ, my child also 6 years old. अच्छा, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस मैम। सो एक काम करते हैं, आज हम एक छोटा सा ना वर्कशॉप करते हैं। क्या होता है, कभी कभी 6 साल के बच्चा है जैसे, हमको ये समझ में नहीं आता कि उसको कितना कितना इंफॉर्मेशन हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में देना है, कितना नहीं देना, क्या चीज उसके लिए सही है, क्या सही नहीं है, और किस तरीके से या किस फॉर्म में हमें उसे ये चीज बतानी चाहिए कि वो ऑफेंसिव भी ना लगे और उसको समझ में भी आए। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? ऐसा होता है ना, ये एक चैलेंज हमारे सामने होता है। हम सभी को पता है कि अच्छा ठीक है, बच्चे को बताना है कि अच्छा ठीक है क्या सही है क्या गलत है, और मतलब अपने आप का बचाव कैसे करना है, लेकिन किस फॉर्म में मैं आपको बताऊं, बच्चों को बताऊं कि वो उसको समझ में भी आए और ऑफेंसिव भी ना हो। किन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं और किन चीजों का मैं इस्तेमाल करूं कि हम ये इसको प्रिसाइजली बच्चों तक हम पहुंचा पाए, ठीक है ना। सो आई जस्ट स्टार्ट अप दिस वर्कशॉप विद द पेरेंट्स बेसिकली ओवर है, ये जहाँ यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं ये चाहूंगी कि आप अपने बच्चे से पूछे, बेटा डेंजर का क्या मतलब होता है? डेंजर का क्या मतलब होता है? तो डेफिनेटली हमारे बच्चे आंसर देंगे कि डेंजर का मतलब खतरा, राइट, कि भाई डेंजर है, कुछ चीज ऐसी है जिससे बच के रहना है,
राइट? सो वी कैन डेफिनेटली लेट देम नो कि ठीक है बेटा, हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो जिनको अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश करे या टच करने की कोशिश करे या फिर आपको अनईजी हो, तो उसको आप डेंजर मानोगे, राइट? दोज आर द डेंजर पार्ट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कौन से डेंजर पार्ट्स हैं? हम शुरू करेंगे लिप्स से, हम शुरू करेंगे, राइट? होठ हमारे डेंजर पार्ट्स हैं, राइट? हमारा चेस्ट एरिया डेंजर पार्ट है, राइट? ठीक है, फिर उसके बाद एरिया बिटवीन द लेग्स डेंजर पार्ट है, या फिर जो हमारा बैक का एरिया है, राइट? हमारा जो बैक एरिया है वो डेंजर पार्ट है, राइट? सो ये डेंजर पार्ट के बारे में मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा दीज आर वेरी वेरी प्राइवेट थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप किसी के साथ में भी शेयर नहीं कर सकते हो, राइट? उसी तरह से ये हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ये डेंजर पार्ट्स हैं, इनको हम किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते, कोई इनको देख नहीं सकता है, राइट? कोई इनको टच नहीं कर सकता है, राइट? So these are the danger parts, right? I hope you understood like what I wanted to say. Every parent and every kid has a different, a unique relationship. और उससे बेटर एक माँ से बेटर अपने बच्चे को, अपने पर्टिकुलर बच्चे को कोई बड़ा नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। And this is a faith which I had been living, और जिस faith पे I have been parenting my kid. एक जो माँ होती है, एक पर्टिकुलर माँ अपने बच्चे को जो केयर करती है, जो उससे प्यार करती है, उससे बेटर केयर या उससे ज्यादा, उससे बेटर प्यार और कोई दुनिया में नहीं कर सकता। सो ट्रस्ट मी, यू आर द बेस्ट पेरेंट फॉर योर किड। आपसे बेटर पेरेंट कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, ये फैक्ट है। This is a trust which I wanted to convey to you, which I wanted to share with you. You are the best parent on this earth for your particular child. Okay, it's a beautiful thought. I can see a beautiful smile on Rajji's face and Veena ji's face. You remembering your kid. It's beautiful. It's a beautiful feeling, definitely. But how it feels. I mean, when you come to know, or when any parent come to know कि अच्छा अनविलिंगली मेरे बच्चे को किसी ने छुआ है, ऐसा लगता है कि उसको ना अपने हाथों से चीर दो, फाड़ दो। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है, राइट? सो द थिंग इज कि उन चीजों से बचाने के लिए मुझे अपने बच्चे को खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। I had been, meeting kids since last, I think 10-15 years. मैं बच्चों से मिलती हूँ, काउंसलिंग्स करती हूँ। कुछ ना कुछ गलती हमारी भी रह जाती है, मैं ये आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि ना हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों से ना चीजें जो है चाहते हैं कि उनको अभी नहीं बताएं, राइट? लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जो छोटी छोटी चीजें उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने दिमाग पे। अच्छा ठीक है, मम्मा ने आज सैनिटरी नैपकिन वाला जो ऐड है वो बंद किया, आगे से इसके बारे में पूछना ही नहीं है। ये फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको। या फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये इस बारे में, इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा था, मम्मा ने नहीं बताया, अच्छा इस बारे में आगे से बात ही नहीं करना है, राइट? ऐसा होता है, राइट? वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से गैदर कर लेंगे, राइट? वो इंफॉर्मेशन सही तरह से गैदर करेंगे या नहीं करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। इट्स बेटर दैट वी गिव देम अ करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड योर किड्स आर इन द एज कि उनको उनकी बॉडी के बारे में बातें बताई जाए। एंड कीप इट कैजुअल। आप जितना कैजुअली उस चीज को हैंडल करोगे, आप जितना कैजुअली उस चीज को बात करोगे कि हाँ बेटा, जैसे डाइजेशन होता है, जैसे रेस्पिरेशन होता है, जैसे एक्सक्रीशन होता है, उसी तरह से रिप्रोडक्शन भी है। It's just a system of our body. That is it, right? But yes, definitely there are few things which are very very private, जो कि आपकी अपनी है, right? For example, again the danger parts of the body. I'll repeat again. For example, the lips, the chest, the part between the legs and the back part. This is the danger part. राइट? ये अगर कोई भी टच कर रहा है या फिर अगर आपको अनईजी फील कराने की कोशिश कर रहा है इन पार्ट्स के लिए, सो दैट इज अ डेंजर, राइट? एंड व्हाट डू यू डू इन डेंजर? व्हेन यू आर इन डेंजर, व्हाट डू यू डू? यू सिंपली शाउट, ठीक है? आपको चिल्लाना है, डरना नहीं है,
ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कन्वे इट टू देम कि आपको डरना नहीं है. इट इज बिकॉज इट इज बीन नोटेड कि कोई भी जो असॉल्ट करता है वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आना चाहता. एंड दे यूज्ड टू टेल किड्स, उनको अलग तरह से डराने की कोशिश करते हैं या फिर उनको बताने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये किसी को बताना नहीं है. राइट, सो यू हैव टू टेल योर किड्स कि बेटा ये चीज को डरना नहीं है और किसी को भी बोलना है. अब किसको बोलना है? कौन आपका ट्रस्टवर्दी है? Mama could be trustworthy, teacher could be trustworthy, principal ma'am could be trustworthy, papa could be trustworthy, anybody could be trustworthy. आप जिसको भी ट्रस्ट करते हो आपको ये बात जाकर के बताना है. और कोई भी अगर आपसे ये बोल रहा है कि ये बात बताना नहीं है तो वो बात तो जरूर बताना है. Right? I hope you are getting it. Why I am saying that? Right? See, we are women. एंड हिंदुस्तान में क्या, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया में 99.9% औरतें ऐसी हैं जिनको कुछ ना कुछ अनवांटेड एक्सपीरियंसेस हुए हैं अपनी लाइफ में, जो वो चाहती थी कि ना हो कभी लाइफ में. राइट, लेकिन अब आज के बाद मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी इस तरीके का एक्सपीरियंस. राइट, ठीक है ना? मैं गलत कह रही हूँ तो आप प्लीज मुझे करेक्ट करें. जहां पे भी आपको लगे कि यू नो वी कैन, तो यू कैन डेफिनेटली करेक्ट मी. सो उस चीज के लिए हमें आज ही अपने बच्चे को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा. शाउट इज अ वेरी 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 पोटेंट वेपन. राइट, टेल देम टू शाउट, हाउ टू शाउट. राइट, it had been, you know, there had been studies जहां पे ये देखा गया है. See, आप अपने बच्चे को एकदम से इस छोटी एज में, टेंडर एज में लड़ना नहीं सिखा सकते हो. अच्छा ठीक है बेटा, पंच मार देना, किक मार देना, वो सब कुछ वो नहीं कर सकता. बट शाउट इज अ वेरी पोटेंट वेपन. शाउट एंड रनिंग अवे, कि बेटा आपको शाउट करना है, पुश करना है और भागना है वहां से. और भाग के कहाँ जाना है? To anybody whom you trust, right? And tell them कि अच्छा ठीक है, इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, मेरे को ऐसे टच करने का कोशिश किया. And see, there will be changes. आपका बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो अपना छोड़ो, वो बाकियों का भी प्रोटेक्शन करने में केपेबल हो जाएगा. मम्मा मैंने ऐसा देखा, वो अंकल वो उसको ऐसे हगी कर रहे थे, ऐसा पकड़ रहे थे. मम्मा वो रॉन्ग है ना. राइट, you have to take your kid to that particular position. उस लेवल तक हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि ना सिर्फ अपना बल्कि अपने साथियों का भी वो सहयोग कर सके, उनको साथ दे सके. राइट, उसको बता सके कि मेरी मम्मा ने मुझे बोला था अगर ऐसा होता तो तू शाउट कर. सोचो, हर एक बच्चा अगर इस तरह से हमने एम्पावर कर दिया तो कितनी जल्दी हमारा देश जो है चाइल्ड अब्यूज से छुटकारा पा सकता है. राइट, आज के डेट में आई एम टेलिंग यू विद क्लियर डाटास कि 90% केसेस चाइल्ड अब्यूज के पता ही नहीं चलते. बच्चे बताते ही नहीं है, उनको डरा दिया जाता है. एंड स्टिल टुडे, आज भी जब मैं इन केसेस के बारे में पढ़ती हूँ, मुझे सच कह रही हूँ मैं आपको, ऐसा लगता है कि ये सेल्फ डिफेंस छोड़ू, मैं सच में तलवार उठा के उन लोगों को ना काटना शुरू कर दूं. मैं सच बोल रही हूँ आपसे. इट्स सो हिडियस एंड सो ड्रेडली, इतना डरावना है वो, बहुत डरावना है वो जो एस्पेक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करें. राइट, नाउ एक और चीज के बारे में मैं बात करूंगी, गुड टच बैड टच. राइट, हाउ टू टेल योर चाइल्ड कि अच्छा बेटे क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है. ठीक है, हाउ टू डिफरेंशिएट. ठीक है, अभी आपको उसको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बेटा कैसे मम्मा आपको हग करती है. राइट, यू फील गुड. राइट, आपको अच्छा लगता है. ठीक है, एंड व्हेन यू कंटिन्यूअसली स्टार्ट टचिंग, पैटिंग कंटिन्यूअसली, इट बिकम्स इरिटेटिंग. राइट, वो इरिटेशन हो जाता है. ठीक है, उसको बार बार ऐसे टच 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 अगर आप करोगे वो इरिटेशन होगा उसको. राइट, यू हैव टू मेक दैट डिफरेंस वेरी क्लियर. व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच. गुड टच के कुछ एग्जाम्पल्स आपको उसे देने पड़ेंगे, जैसे दादू आपको सर पे हाथ फेरते हैं. राइट, या फिर दादी आपको प्यार करती है व्हेन यू डू समथिंग गुड. राइट, जैसे पापा आपको हग करते हैं प्यारा से. ठीक है, या गाल पे किसी देते हैं, या मम्मा आपको हग करती हैं. राइट, सो दीज आर गुड टचेस.
राइट. बैड टच, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बार बार टच करे जा रहा है एंड डेंजर पार्ट्स में कर रहा है, so that is definitely a bad touch, right? Kids are very smart, I'm telling you, with my personal experience I'm telling you, kids are very smart. If you discuss this with them, they can differentiate it very very clearly. उनको सब कुछ समझ में आता है. 6 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, बिलीव मी. 6 साल का बच्चा बिल्कुल छोटा नहीं होता, उसको चीजें समझ में आती हैं, right? So it's a very right time to at least tell them about these things. Good touch है, bad touch है, इन चीजों के बारे में आप उनको definitely बताएं, right? ठीक है? Okay. Any questions if you have, please switch on your mics and please feel free to ask. Any questions? I would really, request you to ask me any questions you want. Please feel free. Sarla ji bhi apni beti ke saath mein बैठी हुई हैं. I'm really happy to see that. I'm really, really happy to see that. So do we have any questions or should we take it further? आगे चले? Yes. Yeah. So, great. So, Yes, thank you, Doctor, for all your valuable views. Now I hand over to session to Miss Rupali Ghorpade for the question answer session. So over to you, Rupali ma'am. Thank you, Sonal. Good morning, everyone. Self-defense will enhance your awareness of your surroundings. You never know when it might happen. No one plans to be attacked. So we must always be on the lookout of our surroundings. So let's begin with the question answer session. I request our parent, Mrs. Rajeshri Gandhi, to ask question to our guest. Good morning, everyone. My name is Rajeshri Gandhi and my child name is Shranay Gandhi. I would like to ask my question to Dr. Komal Bansal ma'am. Why self-defense is important for children? I mean, for today's life. yeah. बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस क्यों जरूरी है? Over to you, कोमल मैम. I think मैम ये जवाब तो क्या मेरे से ज्यादा तो I think कोई भी पेरेंट जो है ये जवाब कोई भी जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं वो ही बता देंगे. Like why do we need self defense? Definitely, India is a growing country, right? India is a developing nation. And यहाँ पे basically आप there are so many things which had to be handled. I mean, we are living in a developing nation, and self defense is one thing जो उनको इस developing nation के लिए pro बनाता है. It is because आप जब contrast देखोगे अपने देश में, एक तरफ बड़े बड़े pubs होते हैं, एक तरफ बच्चे होते हैं या फिर मजदूर दिख रहे होते हैं आपको, right? There are striking contrast when you move out of your house, right? I understand कि हम जो है when we wear short dresses, we are allowed to and we shall, right? लेकिन the thing is कि जो बाजू में जो बिल्डिंग बन रहा है उसका जो मजदूर काम कर रहा है उसका क्या माइंडसेट है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट? सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को उन चीजों के लिए प्रिपेयर रखो जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं चीजें, और इसी चीज के लिए आपको सेल्फ डिफेंस बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है. अल्टीमेटली आप कभी भी आग को गाली नहीं दोगे अगर वो आपको नुकसान पहुंचा दे, राइट? गलती है डेफिनेटली, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट आल्सो. वी आर रिफॉर्मिंग आवर लॉज, वी आर रिफॉर्मिंग आवर रूल्स आल्सो. लेकिन अपने बच्चे का बचाव या अपने बच्चे को बचाना या खुद अपने आप को बचाना ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ डिफेंस आप अपने बच्चे को सिखाएं, खुद सीखें, ताकि आप जो हमारा जो ये सोसाइटी है उसमें आप खुद को एक अच्छी तरह से स्टैंड करा सके, ड्वेल कर सकें और ग्रो कर सकें. आई होप दिस आंसर्स माय क्वेश्चन, मिसेस गांधी. प्लीज लेट मी नो इफ यू Yes, ma'am, you have given a very wonderful answer. We all have heard about self-defense since we were children, and living in this crucial world of the 21st century, where no one is completely safe, it comes as a responsibility that it is only us who can protect us. Now, I request our parent, Mr. Kuldeep, to ask question to our guest.
Good morning, everyone. My name is Kuldeep Jadon. My child name is Drashti Jadon, and I would like to ask my question to Dr. Komal Bansal, ma'am. Ma'am, what are some self-defense tricks and techniques would you like to share for children? ओके सो बेसिकली सर सबसे पहली चीज तो छोटे बच्चे अगर हैं लाइक फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बच्चे हैं 6 साल के बच्चे हैं 7 साल के 4 साल के बच्चे हैं आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट टू लर्न वॉइस मॉड्यूलेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करके कैसे आपको किस मतलब यू नो चीजों को हैंडल करना है वो बहुत जरूरी है कि बच्चों को आए आप उनको सिखाएं कि ये वाला पार्ट use करके you know if we would have been you know on a physical meeting I would have demonstrated it and we would have practiced it but voice modulation is one thing which every child should know कि भाई हर बच्चे को पता होना चाहिए एंड दूसरी चीज एक बहुत यू नो कॉमनली हम लोगों ने देखी भी होगी फॉर सेल्फ डिफेंस बेसिकली बच्चों में जो केसेस हैं वो किडनैप वगैरह के केसेस हैं बच्चों को ले जाते हैं अपने साथ में एंड देन यू नो थिंग्स डजंट यू नो शेप इन द वांटेड वे एक कोड नंबर वाला वीडियो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था व्हेन वी शेयर अ कोड नंबर विद आवर किड के फाइन यू नो इफ समबडी या कोई भी अनजान आपको लेने के लिए आ रहा है तो ही हैज टू टेल द कोड नंबर राइट ऐसा आपने भी देखा होगा फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ में कोड नंबर शेयर कर लेते हैं कि ठीक है भाई 1 2 3 4 है फॉर एग्जांपल राइट तो अगर कोई भी अनजान उनको लेने आया है और कह रहा है कि अच्छा मुझे आपके मम्मा पापा ने भेजा है तो ही हैज टू आस्क कि भैया आप अंकल पहले बताओ कि कोड नंबर क्या है राइट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसी चीजें रखें जो आपको और आपके यू नो बच्चे को ही पता हो ताकि एक यू नो वो चीज एक अच्छी रहे फिर इसके अलावा एक चीज मैंने यहाँ तक देखी है इवन यू नो कुछ बच्चों को पेरेंट्स अपना फोन नंबर तक नहीं याद करवाते राइट समवेयर कहीं ना कहीं अगर बच्चा कहीं तो अकेला है यू नरेट सिनेरियोस टू देम कि अच्छा ठीक है बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है मम्मा पापा का हाथ छूट जाता है राइट तो आप किसी भी आंटी से किसी भी अंकल से फोन करने के लिए बोल सकते हो मम्मा को और मम्मा का फोन नंबर ये है या पापा का फोन नंबर ये है यू हैव टू आस्क मम्मा पापा कि अच्छा ठीक है अंकल आंटी को बोलना है कि अच्छा ठीक है ये फोन नंबर जो है और इस फोन नंबर पे आप प्लीज डायल करके मेरे मम्मा को या पापा को आप जो है बताओ कि मैं इधर हूँ ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा जो है अवेयरनेस होनी चाहिए हमेशा बताना चाहिए मैंने बहुत बार देखा है हम लोग जब बाहर रहते हैं व्हेन वी पेरेंट्स यू नो आर मूविंग आउटसाइड तो हमारा मोबाइल पे ध्यान ज्यादा होता है बच्चे पे कम होता है यू नो पर्सनली आई हैव सीन दैट इन द मॉल्स एंड एवरीवेयर ठीक है कि अच्छा ठीक है मोबाइल में चेक करे बच्चा इधर उधर है आई यूज टू पर्सनली टेक है आपका बच्चा उधर घूम रहा था इसे हाथ पकड़ लो प्लीज बहुत छोटा है इसको सो दीज आर द थिंग्स यू नो एंड दीज थिंग्स हैपन मतलब हमारे आसपास ही होती हैं सबसे पहले तो वो समझना या वो बिलीव करना प्लीज छोड़ दीजिए कि हमारा बच्चा सेव है हमारे साथ कुछ नहीं होगा इट्स अ मिथ इट्स अ कंप्लीट मिथ हम में से ही होते हैं वो लोग जिनके साथ में इस तरीके के केसेस होते हैं और होते हैं आई हैड बीन यू नो सिटिंग विद द पुलिस एवरी डे तो हम में से ही है वो लोग हमारा बच्चा सेफ है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं दोबारा बोलना चाहूंगी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं यू नो जो who love to you know share the whereabouts कि अच्छा ठीक है traveling with such and such person you know at this place Facebook पे या फिर Insta पे they share the credentials of their kids अच्छा you know photos and you know it had been noted that the photos of the kids are being used by Facebook and Instagram for various criminal purposes kindly don't share the pictures of your kids on the social media sites especially कुछ फोटोज ऐसे होते हैं जिनमें भाई बच्चे ने कुछ कम कपड़े पहने हैं या फिर मतलब दे आर लुकिंग अ लिटिल यू नो अपीलिंग सो प्लीज डोंट शेयर दोस फोटोज नॉट ओनली फॉर द क्रिमिनल पर्पसेस यू नेवर नो कल आपका बच्चा बड़े होकर के आपको बोलेगा कि आपने ये फोटो मेरा किस लिए डाला क्यों डाला आपने मेरा फोटो ये राइट then what it is because once on internet it is always on internet right so please be sure कि आप अपने बच्चे के कोई भी वेयर अबाउट उसके कहाँ वो जाता है क्या करता है आपके खुद के कभी भी कहीं भी शेयर ना करें राइट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी अपनी है दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल वेरी वेरी क्रूअल वर्ल्ड
Believe me, I had been listening to the cases every single day, जो कभी कभी हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते हैं, राइट? छोटे छोटे केसेस, असॉल्ट के, मोलेस्ट के, यू नो, ड्राइवर ने कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड ने कर दिया, इवन काम वाली बाई ने कर दिया, अंकल ने कर दिया, आंटी ने कर दिया, राइट? अल्टीमेटली इट्स लाइक अ स्कार, एक स्कार हो जाता है। बच्चा कभी लाइफ में किसी पे भरोसा नहीं करने के लायक बचता है। सो प्लीज मेक श्योर कि हम अपने बच्चों का जो वेयर अबाउट्स है, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, उनके फोटोज हैं, कभी भी शेयर ना करें। उनको सिखाएं, उनको बताएं कि बेटा आपकी सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में है। यू हैव टू बी वेरी 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 अलर्ट। ओके, चिल्लाना सीखो, रिटेलिएट करना सीखो, राइट? कुछ आपके साथ गलत करना है, चुप नहीं बैठना है, आवाज उठा, right? Tell them to shout, which is a very 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 potent weapon. इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेन का यूज है, पिन्स का यूज है, कीज का यूज है। यू नो, वी हैव सर्टेन एरियाज, आईज है हमारी, नोज है हमारी, ईयर है हमारे, then this is the area which is very delicate. जो ओल्डर बच्चे हैं आपके, 10 11 12 साल के जो बच्चे हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो उनको आप बता सकते हो कि इन चीजों का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? सो ये इस तरह से होल्ड है। नी है, वो सॉरी की है, उसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आपको होल्ड करना है। की हैज टू बी होल्डेड लाइक दिस, ठीक है? ये वाला एरिया है। एंड टेल देम हिट हार्ड एंड हिट कंटिन्यूअसली। सिर्फ एक बार मारने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 20 25 30 बार मारना है एक ही जगह पे, धाड़ 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 धाड़, तब जाकर के कुछ लगेगा कि अच्छा ठीक है, मैं अब भाग सकता हूँ। एक बार मार के आप भागोगे तो उल्टा वो आपके पीछे और गुस्से में भागेगा, राइट? मेक श्योर कोई भी आपको अटैक करने के लिए आ रहा है तो वो आपको कैरेस करने के लिए नहीं आ रहा है, तो वो हमारा जो एक रिएक्शन होता है ना, मैं कैसे मारूंगी, वो हमको छोड़ना पड़ेगा, राइट? वी अगर सामने वाला क्रूअल है, हमें भी क्रूअल बनना पड़ेगा। क्लियर? Okay, so Kuldeep ji, I hope I have tried to, you know, frame this answer according to the age group which we are, you know, addressing today. If anything more you want to ask, please feel free to ask me. Yes, ma'am. All the tricks and techniques which you have shared are really very useful. I am also eager to ask you a question, ma'am. My question to you is, what precautions should a child take even though he is traveling with his parents? अपने माता पिता के साथ यात्रा करते हुए भी बच्चे को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? Over to you, ma'am. मैंने ऑलरेडी भी बताया है आपको, यू नो, जब बच्चा ट्रैवल कर रहा हो तो डेफिनेटली यू नो आपके अपने पेरेंट का नंबर उसको याद हो। आप कुछ सिनेरियोज उसके साथ में डिस्कस करके रखें ऑलरेडी, ताकि उसको एकदम से किसी सिनेरियो में ये ना लगे कि अच्छा ये क्या हो गया, राइट? कि हाँ अच्छा मम्मा ने बताया है, ऐसा हो जाता है, इट्स ओके, आई कैन हैंडल इट। उसको वो फील होना चाहिए, राइट? गुड टच बैड टच का उसको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। Shout is one thing which definitely, you know, you must tell them to do. You must tell them to practice also. Retaliate. उलट के जवाब देना है, क्योंकि जो अटैकर्स होते हैं दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि अच्छा ये बच्चा तो कुछ जवाब नहीं देगा, मैं इसको डरा लूंगा। और वही अगर बच्चा चिल्ला देता है ना, तो उसका जो एक्सपेक्टेशन हो जाता है वो ब्रेक हो जाता है, एंड चांसेस आर वेरी ब्राइट कि बच्चा सेफ रहे। So these are the things which I have already you know, shared earlier. So please, please make sure that you discuss all these things with your kids. Yes, sure, ma'am. Prevention is better than cure. All the tips are really worth and useful. I request our parent, Mrs. Veena Rajpurohit, to ask question to our guest. Good morning, everyone. My name is Veena Rajpurohit. My child name is Yashvi Rajpurohit. I would like to ask my question to Dr. Komal Bansal. Which form of self-defense are useful for girls? लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के कौन से रूप उपयोगी है? Over to you, ma'am.
दोनों ही रूप उपयोगी है मैम, मैं कहती हूँ फिजिकल और मेंटल दोनों ही रूप जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मतलब मेरा पर्सनल अगर आप ओपिनियन पूछे तो मेंटल सेल्फ डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, राइट। देखो हम, मुझे ऐसा लगता है एंड मुझे लगता है हर मदर या हर फीमेल इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि हम औरतों के पास में एक सिक्स्थ सेंस होता है, राइट। होता है कि अच्छा हमें कौन किस नजर से देख रहा है ना, हमको समझ में आता है कि नहीं आता? सोनल, आता है ना? आता है हमको समझ में कि कौन हमें किस नजर से देख रहा है, वो हमको समझ में आता है, राइट। तो उस नजर को एडजस्ट करना और उस नजर को इग्नोर मारते रहना इज नेवर अ सोल्यूशन, राइट। और जब आई ऑलवेज से कि केसेस को बिल्डअप मत होने दीजिए, राइट। पहले ही उसको एड्रेस कीजिए, राइट। सबसे पहले किसी ने, अच्छा ठीक है, किसी ने कोई आया और सीटी मारा, ठीक है, हमने उसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर मार करके हम आगे चले गए। अगली बार उसने हमको बट पे मारा, फिर हमने उसको इग्नोर किया, आगे चले गए। तीसरी बार वो सिर्फ हमारा हाथ पकड़ के हमको खींच के लेके जाएगा, राइट। अगर पहली बार ही जब उसने सीटी मारा था हम उसको उधर ही झाड़ते थे तो शायद हमें खींच के ले जाने की नौबत ना आती थी, राइट। तो बहुत जरूरी है कि आपको अगर कुछ भी गलत लग रहा है तो उसको एड्रेस करें, राइट। उसको बोले कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं सही है, नो यू कैन नॉट डू दिस टू मी, यूज योर वॉइस। वी फीमेल्स आर वेरी हाई पिच, राइट। सो यूज योर वॉइस, अवेयर रहे, प्लीज बी अवेयर, ठीक है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके अगर आपको जरूरत पड़ता है तो यू ऑलवेज हैव बैकअप्स विद यू। आपके पास में आपके पेरेंट्स होते हैं, वी हैव आवर टीचर्स, वी हैव आवर प्रिंसिपल, वी हैव द कंप्लीट स्टाफ। सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प, राइट, टू टेल कि हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है, ठीक है। अवेयर रहे, आई वुड से मेंटली अवेयर रहना और छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है आप किसी कैब में बैठ रहे हो, राइट, टेलिंग योर पेरेंट, अच्छा ठीक है मम्मा मैंने ना आपके साथ में अपना वो शेयर किया है एंड ये ड्राइवर है, ड्राइवर का ऐसा है, ओके फाइन, आई एम टेकिंग द फोटो ऑफ द नंबर ऑफ दिस थिंग आल्सो एंड शेयरिंग इट। So these are small things which are very must for a kid to learn. इसके अलावा physical self defense में it is very important that at least a girl should know basic techniques. For example, आपका punch है, kick है, और उसको practice करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे उसको confidence आएगा, right? अच्छा ठीक है, आ मेरे सामने तुझे बताती हूँ। वो confidence होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So I would say mental and physical, both type of self-defense is very necessary for any girl, right? And practicing is even more important, sorry. Really, whatever information you have given, ma'am, shared with us is very useful. Now, I request our parent, Mrs. Sarla Jagtap, to ask you a question. Good morning, everyone. My name is Sarla Jagtap. My child's name is Aradhya Jagtap. I would like to ask my question to Dr. Komal Bansal, ma'am. Please tell us, how can we assure self-defense if we don't know martial arts or we are in old age? कृपया हमें बताइए कि अगर हमें मार्शल आर्ट्स नहीं जानते हैं तो हम आत्म सुरक्षा का आश्वासन कैसे दे सकते हैं? ओवर टू यू मैम। Yeah. So ma'am, again I would say it is very important कि awareness हो, right? Confidence हो, awareness हो, assertiveness हो, right? अब अभी different चीजों के बारे में मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली मैंने assertiveness के बारे में आपको बताया। कुछ भी हो रहा है तो आप उसका जवाब दें, ठीक है, चाहे आप ओल्ड एज में ही क्यों ना हो, चाहे आपको सेल्फ डिफेंस ही क्यों ना आता हो, राइट। अपने आपको बचाने के लिए आवाज उठाना तो हर किसी को आता है, राइट। तो उतना आप करें, जरूर करें, अवेयर रहे। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज में आई हैव सीन पीपल, I keep on मीटिंग पीपल, जैसे सब्जी लेने के लिए जाना है,
ठीक है, या फिर कोई सामान खरीदने के लिए जाना है, एक झोला इस हाथ में है, एक झोला इस हाथ में है, ठीक है, दोनों हाथ में झोला है, गले में मोटा सा चेन है इधर, ठीक है, एंड चलने को नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी जाना है करके, ठीक है। ऐसा किस लिए करना है आपको? व्हेन यू नो दैट यू आर अ लिटिल वीक, ठीक है, एटलीस्ट कीप वन हैंड फ्री, कि अगर इवन आपको कोई पीछे से धक्का देता है तो आप अपने आप को सपोर्ट कर ले, राइट। आप रोज देख रहे हो किसी बंदे को आ रहा है, जा रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्या रीजन है? देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई आपको अननेसेसरली अटेंशन दे रहा है, कोई आपको फेवर कर रहा है, कोई रोज आपको सब्जी वाला या फिर कोई आपको सिक्योरिटी वाला रोज आकर के पूछा, अच्छा अंकल आप कैसे हो, अच्छा अंकल आंटी आप कैसे हो, अच्छा ये कैसा है, वो कैसा है, भैया कहाँ है, दीदी कहाँ है, आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आपके जो टेंटिकल्स होते हैं खड़े हो जाने चाहिए, इवन फॉर द विमेन आई एम स्पीकिंग, हम बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों के ऊपर। सेल्फ डिफेंस करने के लिए जरूरी नहीं है कि अच्छा ठीक है आप झांसी की रानी ही हो या फिर आप एकदम शोषा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी वेरी अवेयर। आप ये समझ पा रहे हो, आप वो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि आखिर ये जो चल रहा है किस लिए चल रहा है बॉस। इवन ऑन सोशल मीडिया, I used to take sessions for girls and young children also. तो दे आस्क मी क्वेश्चन, अच्छा कैसे डिफरेंशिएट किया जाए मैम कि कोई हमें स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई नहीं कर रहा है। सो बेटा सिंपल बात है, इट्स वेरी सिंपल, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई आपको अननेसेसरली फेवर्स कर रहा है, उसका कुछ हिडन एजेंडा है बॉस। अवेयर रहिए। एक केस हुआ था पीछे जिसमें there was a severe kidnapping and rape happened, and from where information was being leaked, ये लेडी रोज बस में जाती थी और खूब अच्छे से फोन पे अपनी बहन से बात करती थी। अच्छा इस समय मैं वहां जाती हूँ, अच्छा इस समय मैं ये करती हूँ, अच्छा ठीक है कल को मैं वहां जा रही हूँ, हाँ मुझे डर लग रहा है कोई होगा नहीं वहां पे। And this guy who used to follow her in the bus, he knew everything. उसको किसी और ने बताया नहीं, वो खुद ही बताती थी अपने बारे में सब कुछ, right? So make sure कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, वो आप एक सिक्रेसी के दायरे में रह के करो। अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर ना करो। Even for the financial frauds, we sometimes share our information. आप प्लीज अवेयर रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अवेयर रहें। हर किसी को शक से देखो, हर किसी को शक से देखो, कुछ गलत नहीं है उसमें। अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी शक से देखिए आप। I mean, the world is like that. I don't think कि उसमें कुछ गलत है, right? So I would request everybody to be aware. अपने आप को अवेयर रखें, क्या चल रहा है अपने आसपास उसको ध्यान से देखें और हमें समझ में आता है। For elders, for elderlies, they are even more experienced. सबको समझ में आता है क्या चल रहा है। Please be aware. Don't trust anybody. Right? Yes, age, as we know, is not a factor for learning new things. Older citizens can learn new techniques. This will also help in improving their health as well. Now, I request our principal, Mrs. Snehal Khataukar Madam, to give overall view of the webinar. Over to you, Snehal ma'am. Thank you, Rupali, for the question and answer session. It was a very interesting session. Yes, ma'am, Komal ma'am. Today we had an outstanding personality, Dr. Komal Bansal, for the webinar on the topic Be Strong Physically and Mentally. Self-defense creates self-awareness. Madam, I sincerely appreciate you for sparing your valuable time from your busy schedule. Our viewers were enlightened with good touch and bad touch, importance of self-defense for children, different tricks and techniques of self-defense, what precautions we should take while traveling, which forms of self-defense are useful for girls, how to keep ourselves safe even if we don't know martial arts or we are in the old age. After gaining this knowledge, our viewers surely are alert, isn't it? Thank you. Over to you, Sonal. Thank you, madam. Let us be grateful
to people who make us happy, imparts knowledge. They are the charming gardeners who make our soul blossom. So, I, Sonal Khabia, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, deem it with a great honor to propose a hearty vote of thanks to acknowledge the contribution of all those who worked hard to this webinar. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's webinar a resounding success. My heart fills with lots of gratitude and respect to thank our today's speaker, Dr. Komal Bansal, for enlightening us with enormous knowledge and for valuable presence. Really, today's webinar was creditable. Ma'am, we really appreciate the wealth of knowledge and insight you shared today. Thank you for your thought-provoking address. A heartfelt thanks to our chairman, Sri Subhash Ji Parmar Sir, committee members, trust members, principal, teachers, parents, and dear students for their enormous support. A special thanks for our technical team for their unflinching support and coordination to make this webinar a grand success. Thank you all enthusiastic and encouraging viewers for joining us to Facebook Live and appreciating us by your valuable comments. With these warm words and a kind message, we move to the end of our today's fascinating webinar. Thank you all for your cordial cooperation and stay connected with Acharya Shri Vijay Vallabh School for more such fascinating and knowledgeable webinars. Thank you. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving their overwhelming response. Thanks to our today's eminent speaker. A special thanks to our chairman, Shri Subhash Ji Parmar. A big thanks to our organizing team, Mrs. Snehal Khataukar, Principal, Mr. Kalpesh Darji, Team Leader, Mrs. Rupali Ghorpade, Teacher, Mrs. Sonal Khabia, Teacher, Mrs. Itisha Shah, Teacher, Miss Bhavika Rathod, Teacher, Miss Urvisha Rathod, Teacher, Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you. Acharya. Okay, thank you, all the viewers, and I hope, it was an insightful session. And please feel free to connect with me on my, website.